داخل سوشل میڈیا پر زہر دینے کی افواہیں گرم۔ پارلیمنٹ میں ہنگامے کے لیے اقتدار پارٹی ذمہ دار، وزیر داخلہ کو سیکیورٹی چوک پر بیان دینا چاہیے، ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی کا بیان۔ اور وادی کشمیر کے شبانہ درجہ حرارت میں آئی بہتری، مغل شاہراہ اور سری نگر لیہ روڈ مسلسل دوسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند۔ السلام علیکم ناظرین، گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی تک کا تازہ اردو خبر نامہ لے کر آپ کا میزبان ظہور لولابی آپ کی خدمت میں حاضر۔ شروعات بڑی اور اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ انتہائی مطلوب انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے حوالے سے بڑی خبر ہے، اور داؤد ابراہیم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چرچے زور پکڑ رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داؤد کو کراچی میں زہر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ دراصل سوشل میڈیا پر کئی صارفین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کو کراچی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، اور دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اسے زہر دیا ہے، جس کی وجہ سے داؤد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق داؤد کے گینگ کے سابق رکن نے تصدیق کی ہے کہ داؤد شدید علالت کے باعث کراچی کے اسپتال میں داخل ہیں، اور اسے 2 روز قبل اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ سخت سیکیورٹی میں اسے رکھا گیا ہے، اور کسی کو بھی اس فلور پر جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں اسے داخل کیا گیا ہے۔ وہاں صرف اعلیٰ حکام اور خاندان کے قریبی لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ زہر دینے کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ بھی واضح نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پاکستانی اور ہندوستانی حکام نے اس حوالے سے باضابطہ تصدیق نہیں کیا ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ داؤد کی اچانک خرابی کی وجہ زہر ہو سکتی ہے۔ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ داؤد کئی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہے۔ بتا دیں کہ داؤد ابراہیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ 10 نومبر 1955 میں مہاراشٹر کے رتنا گیری ضلع میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد ابراہیم پولیس کانسٹیبل تھے۔ بعد ازاں داؤد ابراہیم کا خاندان ممبئی کے ڈونگری علاقے میں آباد ہو گیا، اور 70 کی دہائی میں ممبئی کے انڈر ورلڈ میں داؤد کا نام تیزی سے اٹھنے لگا۔ پہلے وہ حاجی مستان گینگ میں کام کرتا تھا، وہاں رہتے ہوئے اس کا اثر رسوخ بڑھنے لگا، اور لوگ اس کے گینگ کو ڈی کمپنی بھی کہنے لگے، اور اسے اس گینگ کا رہنما سمجھا جاتا تھا۔ تاہم اب سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اسپتال میں ان کو داخل کیا گیا ہے، اور ان کو زہر دینے کے حوالے سے بھی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر حسنین مسعودی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کے لیے حزب اقتدار پارٹی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سب سے محفوظ عمارت کے سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کسی خاص پارٹی یا پارٹی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سب سے محفوظ عمارت یعنی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کو اس حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان دینا چاہیے۔ واقع ہوا ایک سنگین جو ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، ایک سیکیورٹی لیپس ہوا، سنگین لیپس ہوا۔ دیکھیے ایسا ہی نہیں کہ کسی نے آواز دی وہاں بالکنی سے، بلکہ یہ ہوا کہ وہ اتر رہے نیچے، اور نیچے اتر ایک کیمیائی کوئی چیز شے تھی، اس کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ سنگین معاملہ ہے، تو اگر ہم نہیں کہیں گے تو کیا آپ کہیں گے کہ ہمیں اس کے ساتھ اتفاق کرنا؟ بی جے پی کہہ رہی ہے، سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ لوک سبھا اسپیکر کا ادھیکار ہے، یہ کہاں سے کہ پردھان منتری یا گرہ منتری بولے؟ اگر ہمارے ساتھ رد عمل نہیں ہوگا تو آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑے کریں گے کہ بھائی کیسا حزب اختلاف ہے، یہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ بات یہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب آ کے صدر کو اپنے اعتماد میں لے لیں، صدر میں بیان دیں اور کہیں کہ کیا واقعہ ہوا، دراصل کون کر رہا ہے یہ جو ہاؤس نہیں چلنے دیا جا رہا ہے، یہ ٹریگر کون رہا ہے، یہ تو حزب
हिजबुत कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई एक बयान दे दो, कहोगी कि हुआ कैसे हुआ, क्या करने जा रहे हो, मसला खत्म। लेकिन कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो अच्छा, वो जो अपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनका तरीका गलत था लेकिन मांगे जायज थी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जयराम रमेश भी कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो इसलिए आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद शबाना दर्ज हरारत में मजीद बेहतरी आई है, जबकि गुलमर्ग में शबाना दर्ज हरारत -8.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि मौसम का कम तरीन था। वादी के तमाम स्टेशनों पर दर्ज हरारत नुक्ता इंजमान के नीचे आज रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद तवारीखी मुगल शाहरा और श्रीनगर, सोनमर्ग, लद्दाख शाहरा अभी भी आज मुसलसल दूसरे रोज भी एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि जनूबी कश्मीर के शोपियां अजला को जुम्मन सूबे के जुड़वा अजला पूंछन और राजौरी से जोड़ने वाली मुगल शाहरा फिलहाल ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए आज भी बंद है। शाहरा पर अगरचे शाहरा को बहाल करने के हवाले से इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताहम अभी तक शाहरा को बहाल नहीं किया गया। इधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के साधना पास, टंगडार, कैरन और मसल सड़क में भी BRO के एहलकारों ने बर्फ साफ करने के हवाले से काम शुरू किया है। और आपको बता दें कि वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हफ्ते की शाम ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे कई सड़कें बंद हो गई है। मुगल शाहरा के हवाले से क्या कुछ ताज़ा अपडेट, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ हैं। इरशाद, अपडेट कीजिएगा कि आज मुसलसल दूसरे रोज भी शाहरा बंद है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है और क्या वजह है कि अभी तक भी शाहरा को बहाल नहीं किया गया? जो बर्फबारी हुई हमारी ये रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे हो रही थी, मगर इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त मौसम में जो है तब्दीली जो तकरीबन जो है 1 फुट बर्फ जो है। प्रॉब्लम है आपको, आप जरा अपना फोन ठीक कीजिएगा। आपको बता दें कि मुगल शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए फिलहाल बंद है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज बर्फबारी हुई थी पीर की गली और दूसरे कई मकामात पर, जिसकी वजह से मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इधर अगरचे इंतजामिया की तरफ से शाहरा को बहाल करने के हवाले से कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक भी शाहरा को बहाल नहीं किया जा सकता। इधर श्रीनगर लद्दाख शाहरा भी फिलहाल ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है और लोगों को ये मशवरा दिया गया है कि वो शाहरा पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे, उसके बाद ही अपना सफ़र दोबारा शुरू करे। इरशाद से हमारा दोबारा राब्ता हो चुका है। इरशाद, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मुगल शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है और कब तक शाहरा बहाल होगी? देखिए जोहर, अगर हम बात करें मगर रोड की, तो मगर रोड को जो है 2 दिन पहले जो है बंद करना पड़ा, क्योंकि जो ताज़ा बर्फबारी हुई है मगर रोड के अंदर। मैं आपको बता दूं, सुबह हमारे पास ये खबर आ रही कि सुबह भी जो है जो लगातार बर्फबारी हो रही थी मगर रोड पे। और मैं आपको बता दूं, अगर पीरगिली या दिब्जन की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 1 फुट की जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल जो हमारी कुछ बात हुई अफसरों से, उनका कहना है कि जो फिसलन है उसकी वजह से हमने जो है रोड को अभी तक जो है क्लोज कर दिया गया। मगर जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो मौसम में तब्दीली जो है हमें को आज सुबह से ही देखने को मिल रही, उस हिसाब से लगता है कि रोड जो है शाम तक जो है खुलने की चांस है। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी तक जो है रोड जो है बंद ही है। तो इरशाद, आपकी बात ट्रैफिक हुकाम से हुई है, इंतजामिया से हुई है, तो उनका क्या कहना था कि कब तक शाहरा को बहाल किया जा सकता है और जिन लोगों का ये रोज़ रास्ता है जो वहाँ से जाते हैं, तो उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? देखिए, हमने कुछ अफसरों से बात किया है, उनका यही कहना है कि जो फिसलन है वहाँ पे जो बर्फबारी हुई है, हाल ही में जो बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से हमने जो है रोड को क्लोज कर दिया है। मगर अगर हम बात करें इस साल जो है पिछले साल में जो है
नवंबर में रोड बंद हुआ था, पर इस साल जो है दिसंबर में रोड बंद हुआ। उनका अगर हमने उनके साथ बात किया, उनका यही कहना है कि अगर मौसम में तब्दीली आई तो हम बिल्कुल जो है अपनी मशीनरी है ऊपर की तरफ ले जाएंगे और वो रोड जो है क्लियर हो जाएगा। मगर जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, उस हिसाब से लगता है कि शाम तक जो है चांसेस है कि रोड जो है ओपन हो जाएगा। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद शुपैया से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि मुगल शाहरा जहाँ आज मुसलसल दूसरे रोज भी बंद है, ताहम हुकाम की तरफ से मुगल शाहरा को बहाल करने के हवाले से कोशिश की जा रही है और अगर मौसम ऐसा ही ठीक रहा तो शाम तक शाहरा बहाल होने की उम्मीद है। तो हम लोग उससे एहतियात बरतने की अपील है और शाहरा पर सफर शुरू करने से पहले वो कंट्रोल रूम से राबिता कायम करे, उनसे ताज़ा अपडेट ले, उसके बाद ही अपना सफर इन शाहराओं पर शुरू करे। गुजर बस्ती बिजवनी त्राल के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बिजवनी से बस्ती तक 1 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिस वजह से मुकामी आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई इमरजेंसी या बीमार होता है तो उसको कंधे पर उठा के अस्पताल ले जाना पड़ता है और उन्होंने इस हवाले से मुतल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। यहाँ बजवन त्राल टाउन के साथ ही रहते हैं। हमारे ये रोड का मसला है जी, ये रोड बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें कीचड़, जब बारिश पड़ती है यहाँ बहुत सारी कीचड़ होती है। यहाँ आगे पाइप एक भी फटी हुई है, उसकी वजह से भी बहुत सारा वहाँ पे रोड खराब है। हमें यहाँ से अगर कोई बीमार होता है, यहाँ से हमें कंधे पे निकाल के उसको बाहर पहुँचाना पड़ता है। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि नहीं हम वहाँ से कंधे पे उठा के लाते हैं। रोड से यहाँ तक हम 1 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ हम यहाँ तक इस पे कंधे पे उठा के लाते हैं। ऊपर हर जगह रोड बनाई गई है जहाँ मैगडम सब कुछ सारी रोड तैयारी की गई है। ये टाउन के साथ है, इसको 1 ही किलोमीटर है, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं है और इसके तवज्जो ही नहीं दे रहा है कोई यहाँ पे। तो हमने बहुत बार गए थे, डीसी गए थे, एडीसी के पास भी गए थे, सबके पास, ब्लॉक वालों के पास भी गए थे। यहाँ उन्होंने आए तो सही मगर काम कुछ नहीं किया। कहते हैं आज सुबह, परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, होता ये कुछ भी नहीं है। हमारी अपील यही है कि वो इस रोड की तरफ तवज्जो दे, थोड़ा इसको थोड़ा ठीक करे तो हमें चलने फिरने में थोड़ा आसाइश का सामना होगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं शौकत अहमद गुजर बस्ती बजवनी से बोल रहा हूँ सर। हमें सर सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है सर। पाइप दिया था सर तो वो भी आधे रस्तों में फटा हुआ है, तो पानी समझो जो सड़क से जा रहा है सर। हमें बच्चों, अभी कोई भी बीमार होता है हमें यहाँ से उठा के चिनार के पास लेके जाना पड़ता है सर। 1 किलोमीटर टावन त्राल से समझो 1 किलोमीटर दूर है टावन। जिला शुपैया के मेन टाउन में भी सड़क की खस्ताहाली को लेकर मुकामी लोग मुश्किलात से दो चार है। कनीपोरा के अवाम ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर जिला इंतजामी के खिलाफ एहतजाज किया और उनका कहना था कि कई बार हमने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि इस सड़क की मरम्मत की जाए, ताहम इंतजामिया ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने से बुजुर्गों और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि सड़क को आमदरफ्ती के लिए बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। गोडनिकुई आज दी तुम नजर तुम यथ गो बराबर 1 वरी RMB गए टवनालस गए, मगर अस आव न कर कहें नजर। तुम दिव नजर ये कल्चन गाड़ खड़न या दोस गाड़ खड़न ये गाड़ खचान कहें टोटल तुम वो पान क्या गोमुत। पे पत्म वरी पन्न पोसन सीमट सह रूद न पता शीन तुलने मशीन सह सीमट थोदे तुल यह गो ये एक्सीडेंट। गाड़ गई ये ब्या गई अपर आय कदलस ठासन। तुम दी नजर पान तुम तो पन कैमरा ये सजर वजर गाड़ वाड़ खचान। हम डी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम
पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब भी कोई गाड़ी आती है, एक्सीडेंट तो आए रोज हो ही जाते हैं, बाइक की स्केटिंग हो जाती है। आप इस रोड की हालत देखिए, और R&B म्यूनसिपलिटी कोई दफ्तर हमने नहीं छोड़ा है जिसमें हम नहीं गए और उनको नहीं बोला कि इसकी कोई मरम्मत कीजिए आप, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या मसला है। और ये मेन टाउन है, ये मेन टाउन की हालत है, और आगे पता नहीं फिर गांव का क्या हाल होगा। ये हमारा हाल है, आप खुद देखिए इसका। आप बस इतना ही कहना चाहते हैं, इसमें काम करिए, कोई ऐसी तरतीब सोचे कि लोग परेशान ना हो जाए। विंटर में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम। अब कौन आ जाएगा यहाँ पे? इस गाड़ी आप खुद देखिए, इसमें कौन चढ़ेगा? इसमें तो बाहर में कोई नहीं चढ़ता, तो बर्फ में कौन चढ़ेगा इसमें? जम्मू कश्मीर में जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत खासी रकम सर्फ की गई और कई इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कई प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए, वहीं पुलवामा के निवा ब्लॉक के अंदर भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर एक प्रोजेक्ट तामीर किया गया था, जो अब लापरवाही की वजह से डंपिंग यार्ड में तब्दील हुआ है। पूरे इलाके का कूड़ा करकट वहां फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में बदबू फैलने का खतरा है। इस हवाले से मुकामी लोगों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। रिसाइकलिंग प्लांट प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है, वहाँ अब वो डंपिंग साइट में चेंज हो गया है। वहाँ पर कोई रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। का कूड़ा करकट जो है, गंदगी वगैरह, वो सारे तीनों किस्म के सॉलिड लिक्विड, हर एक किस्म का जो कूड़ा करकट निकला है वो वहाँ पर डंप हुआ है। तो डंपिंग के लिए हमने माजरत पहले ही जाहिर की थी कि अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे जब मार्च में एनहांस हो जाएगा और बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा, ये सारा कूड़ा करकट जो है ये हमारे घरों तक पहुँचेगा, जिससे यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का खतरा लाहक है। हम चाहेंगे कि ये जो रिसाइकलिंग प्लांट है और जो सेग्रीगेशन प्लांट है उसको साइंटिफिकली पूरे तरीके से साइंसी तौर पर उसको इस्तेमाल करके, ठीक है रिसाइकलिंग कीजिए और आप सेग्रीगेशन कीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये इस तरह खुला ही रहा, डंपिंग साइट के तौर पर यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां मुल्क भर में किसी रकम खर्च किया जा रहा है ताकि जो गार्बेज है उसको साइंटिफिक तरीके से ज़ाया किया जाए, वही अगर हम बात करें पुलवामा के निवा ब्लॉक में हम इस वक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी किसी रकम खर्च करके जो है एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक प्रोजेक्ट तामीर किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डंपिंग साइट में तब्दील किया गया है। जो पूरे ब्लॉक का जो गार्बेज है वो यहाँ पे जमा किया जाता है। लेकिन आपको ये बताएं, जो मकसद था इस पूरे प्रोजेक्ट का वो ये था कि किस तरह से जो गार्बेज है उसको साइंटिफिक तरीके से ज़ाया किया जाए, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो कुछ और ही बयां कर रही है कि जो यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको डंपिंग यार्ड में तब्दील किया गया है। इस हवाले से हमने जब बात की जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर निवा है, तो उनका ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनको अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़। गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज भद्रवाह ने कम्युनिटी हॉल भद्रवाह में हलबरदारी और चरंगा की तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर एडीसी भद्रवाह दलवीर चौधरी मेहमान खुसूसी थे। खिताब करते हुए इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल विजय चरक ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद इंस्टीट्यूट के नए तलबा यह हलफ उठाए कि वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ माशरे की खिदमत करेंगे। Dear students, this was a review which is a cultural program of लाइटनिंग एंड ओथ सेरेमनी। ये हमारा प्रोग्राम जो है, जो फ्रेश बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए करवाया जाता है। ये प्लेज लेते हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, ताकि वो अपनी निष्ठा से और बहुत ईमानदारी से काम करें। क्योंकि नर्सिंग केयर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो पेशेंट को ठीक करने में भूमिका निभाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में नियर अबाउट अभी इस वक्त जो ऑन रोल मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो 100 से ऊपर ही हैं। बाकी मेरे पास तो स्टूडेंट्स होते हैं, हर साल हमारे स्टूडेंट पास आउट होते जाते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं वो 100 के करीब हैं।
इनका ये रहता है कि ये अभी ट्रेनिंग करने के बाद एक तो हेल्थ में हमारे पास जो है एक्सपेंशन जो है नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए तो है ही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में इनकी बहुत ही डिमांड होती है, नर्सिंग होम से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल तक इनका बहुत काम होता है। अभी हमारे कॉलेज से बच्चे जो अमनदीप हॉस्पिटल जो है उसमें काम कर रहे हैं अमृतसर वाले में, और न्यूमेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो नोएडा में है उसमें भी हमारे बच्चे गुरुकुल से पढ़ के जाकर अपनी सर्विस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हजारों दुकानदारों और सेल्समैनों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हलचल से भरी सड़कें जो कभी पुरजोश ग्राहकों से भरी होती थी अब खामोश गलियों में तब्दील हो गई है। दुकानदारों का कहना था कि सार्फिन अक्सर कीमतों का मौजाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं। नकल हमल के चार्जेस, टैक्सेस और दीगर अखराजात जो फिजिकल स्टोर बर्दाश्त करते हैं उन पर गौर नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफे ने कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव डाला है, जिसकी वजह से मुनाफा के मार्जिन में कमी या कीमतों की सतह को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। नहीं कर सकते वहाँ। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर ये शॉप के पास जाएंगे, अगर मैं आपको बता दूं हाँ मैं रेडीमेड का काम करता हूँ, मैं आपको बता दूं हाँ ये वूल है, आप यहाँ पे फील कर सकते दिस इज वूल। आपको क्या पता है कि अगर आप यही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ये लाओगे, आपको क्या पता वूल भेजे कि सनथड़ी भेजा है। आजकल ये प्रॉब्लम है मार्केट में। आपको लगता है कि इससे कारोबार जो इफेक्ट हुआ है? एग्जैक्टली, उससे तो कारोबार हुआ है, इफेक्ट तो हो गया है, इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है आजकल। अब सरकार को इसके लिए कोई पॉलिसी जारी हुई या लोगों में अवेयरनेस पैदा करी हुई? मुझे लगता है उससे बेटर है कि अगर सरकार इसमें कोई पॉलिसी लागू करे, कोई इसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए उस वजह से कि मतलब फिर क्योंकि हम तो वो यार जीएसटी पे, हम तो जीएसटी भी पे कर रहे हैं, वो लोग तो जीएसटी भी पे नहीं करते, वो तो कुछ भी करने नहीं कर रहे। हम तो डायरेक्ट हम तो कंपनी से माल उठा के लाते हैं फिर यहाँ पे बेचते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी असल में ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही है। जैसे हमें भी कंपनियां प्रोवाइड करती है गुड्स, हमें भी वही स्कीम्स होती है। अब रही बात क्या होता था, उसमें क्या होता है जब इंसान यूपीआई करता था, ट्रांसफर करता था, पेमेंट करता था उनके, आफ्टर दैट मैं नहीं बोलूँ सब कुछ फेक निकलता, कुछ ना कुछ फेक निकलता है। ऑफलाइन में क्या है, आप आगे पसंद आया नहीं आया, पसंद आ गया, और रही बात अगर आपको कोई फॉल्ट तो हाथों हाथ आपको रिप्लेस करके देते हैं। फर्क ये होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ये फर्क आती है। और रही बात मेरे को समझ नहीं आता है जब आप मोस्ट प्रॉब्ली आप ट्रांस से ऐसा आ गया सेल वो नहीं देख रहे वो क्या गुड्स ले रहे हैं वहां पर। चलिए अभी तक की और खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।